very secure, giving modern education together with Islamic education. Then we have a vision for starting ITI. 2015, we succeeded to open one Rahbar Technical Center, whereby we have seats 42 electrical, 42 for the plumbing. And we have succeeded so far to sponsor all the candidates. Thereafter, we have a vision. We sponsor so many Manu students. More than 200 students has been sponsored under the Manu. There's the engineering colleges whereby we support all the engineering students to pursue their studies. Whatever expenses do comes in, we fully sponsor them. Now we have established one career guidance center in Patna, whereby all those aspirants need not to go anywhere. They are getting full information to access the further career they want. So they access all those information. They have advisors. There's a counselor shaping them in their career. Then there's a Sabha, that's for group marriage. And we have a website which connects matrimonials across the state. Then we have a center called Baji, where we are teaching handicraft, technical skills to women. Then there's a vision to have one Rahbar International School. And also we are driving to have a women university. We have the website, that's biharanjuman.org, which has all those information. We also have a magazine called Bakhabar, that's a monthly magazine. As already I stated that it has biggest online network of NRIs. As I talk, the Bakhabar magazine has been started in 2008. I'm running through all the slides because there's a paucity of time, and we are experiencing technical snag as well anyway. Here is the Rahbar, which is a monitoring body in India, which takes care of all those operations back in India. We have been awarded as the Organization of the Year in 2010 by Honorable Salman Khurshid. Now it has all those facilities which can be covered across all educational fields, whether in ITI, engineering, whether some information required, career-related sponsorship. That's we are doing through the website by using the information technology. Yeah, it is just a mission which says that if you are investing here, invest for the akhirah, that will be investment for the eternity. And we know all this, the famous hadith, that whatever you're investing in it, Allah will return you 70 times more. Then we have been moving into, when we have been sitting together, we discussed about Sachar committee, we discussed about Rangnath Misra and all. We thought that what we should do, instead of discussing this all things in the drawing room, we thought that let's do some action, because action speaks louder than word. With this vision and mission, we started a chapter here, the Ma'am Khubar chapter. Then we started initially supporting all coaching center back there. Then we started fully supporting 2 or 3 centers. Currently, we are sponsoring one RCC Rahbar Coaching Center in Dhanbad, and we are providing all assistance to them to secure a better future, to secure all those study material, to teaching all sort of activities under one roof. And we just selecting boys from the poor and downtrodden, supporting them till we shape them into a technical professional. We are committed to do all activities within the education field. That's the vision we had. And then thereafter, we established a social congregation there to support all education faculty to be act as an advisor and help those poor and needy students to get access in terms of money, in terms of experienced teaching staff. So those who was a sad face there, now they find ray of hope in us. Then we have started several other social activities, including
We supported here Netakat program. We supported back there in India Iftar kits. We supported activities, social activities, those who was having an issue here, or some death activities, some accidental activities, some natural calamities. We are coming as a helping hand there. Then we thought out that, okay, we have been doing enough here for this educational activity. Why not we should establish one division in India whereby we can explore more, we can attach more people to support us, to help us, and then we reach out to the Indian community back there. Because we already know that India is a big nation, in fact, many nations within a nation. So we should be comprehensively try our best to give back to our society. So that's the aim, objective we are working on, and we harness that and we excel in that. So the action speaks louder than the word, as I said. We established a program called Ambition 2020, and then Adopt to Educate. So these two programs we have been carrying on, and thereafter there is a NGO back in India we register as Rahnuma Foundation. And today he is here, the gentleman who came here exclusively from India to speak about Rahnuma Foundation, Sayyid Tahseen Saab. Maybe he will speak later about that what are the activities he is pursuing there. Thank you. शुक्रिया जनाब अंदलीप रहमान साहब, बिहार अंजुमन और उसकी एक्टिविटीज़ और अचीवमेंट्स को बयान करने बहुत अच्छी तरह आपने इसे बयान किया और जो लोग इससे नावाकिफ़ थे उनको आशना बनाया। अब मैं जनाब तहसीन अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और रहनुमा फाउंडेशन के बारे में आप हजरात को बताएं। रहनुमा फाउंडेशन क्या है और इसकी एक्टिविटी क्या है, और बिहार अंजुमन दमाम खोबा चैप्टर रहनुमा फाउंडेशन के अम्ब्रेले के नीचे काम कर रहा है। और जनाब तहसीन अहमद साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये डाइन टू एजुकेट का प्रोग्राम जब शुरू हुआ था उस वक्त ये एक तसव्वुर था, एक सोच थी कि गरीब बच्चों, नादार बच्चों और मार्जिनलाइज क्लास के जो लोग हैं, वीकर सेक्शन हैं, उनके बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम कैसे किया जाए। यूँ तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी और करती है, लेकिन बिहार अंजुमन के तहत जो डाइन टू एजुकेट का प्रोग्राम बना, उसमें एक सोच ये बनी कि क्यों ना हम लोग जो साहब सरवत हैं, जिनको अल्लाह ताला ने कुछ बख्शा है, वो एक वक्त का खाना एक गरीब बच्चों के लिए और वीकर सेक्शन के बच्चों की तालीम के लिए खाना खाएं। ज़ाहिर है इस सोच के साथ लोग जमा हुए और लोगों ने इसका भरपूर ताउन किया। लिहाजा इस वक्त ये गुजारिश ये है कि अगर इसमें खुदा न खास्ता कोई बदनज़मी हो रही हो तो इस तसव्वुर को मद्देनज़र रखते हुए दरगुज़र से काम लेंगे कि ये खाना हम लोगों ने जो खाया है वो इस एक खाने के पीछे एक गरीब बच्चों का हिस्सा जाता है, ये आपके खाने से। और आपके खाना खाने से ये जो जमा होते हैं तो कुछ स्पॉन्सर्स भी आते हैं कॉरपोरेट सेक्टर्स के, तो उससे भी कुछ पैसे आ जाते हैं जिससे हम लोग उन गरीब बच्चों में तकसीम करते हैं उनके फ़ीस वगैरह के लिए। तो ये एक तसव्वुर था जिसके तहत ये प्रोग्राम किया गया। मेरा ख़्याल ये चौथा डाइन टू एजुकेट का प्रोग्राम हुआ है
चौथा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें जहाँ ऑर्गेनाइज़र की कोशिशें रही हैं वहीं हमारे तमाम हजरात जो आप जैसे मुखलिस लोगों के ताउन से ये काम अंजाम हुआ है। मुझे कहा गया है कि रहनुमा फाउंडेशन का तारुफ़ कराया जाए। दरअसल मुल्की हालात को हम लोग समझ रहे हैं, सऊदी अरब के हालात को भी देख रहे हैं, और जो हम लोग यहाँ से ट्रांजैक्शन करते हैं वो ट्रांजैक्शन कितना मुश्किल हो गया है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, और उस पर गिरफ्त कितनी हो रही है, यानी गवर्नमेंट की और आरबीआई की, और इन सबों से भी हम तमाम लोग वाकिफ़ हैं। तो एक ऐसा एनजीओ भी बनाया गया सोच करके कि जिससे कि प्रॉपर वे में सारे ट्रांजैक्शन को रखा जाए और किया जाए। तो इस सोच के साथ रहनुमा फाउंडेशन एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया गया, यानी ट्रस्ट एक्ट के तहत, जिसमें बहुत सारे बिहार अंजुमन के जो एडवाइज़री कमेटी के मेंबर्स हैं वो उसके मेंबर्स हैं। लेकिन अभी तक रहनुमा फाउंडेशन फंक्शन में नहीं आई है। अभी तक तो ये हो रहा है कि जो भी पैसे होते हैं जो लड़के के डायरेक्ट अकाउंट में हम लोग भेज देते हैं, कोई रहनुमा फाउंडेशन के अकाउंट में नहीं जाता पैसा। अभी सिर्फ उसका एक रजिस्ट्रेशन हुआ है, और ये है कि आइंदा जब हम लोग काम करेंगे तो उसको बजाय इसके कि हम किसी के नाम पे ट्रांसफ़र करें तो रहनुमा फाउंडेशन के ही नाम पे वो जाए, और प्रॉपर वे में वो लीगल फ्रेम में सारा उसका यानी अकाउंटिंग वगैरह हो। तो लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अभी रहनुमा फाउंडेशन के अकाउंट में अभी कोई पैसा यहाँ से नहीं गया है। अभी हम लोग ये करते हैं कि जैसे लड़के को स्पॉन्सर यानी हम लोगों ने सेलेक्ट किया, उसका डायरेक्ट अकाउंट नंबर होता है, उससे उसको इंक्वायरी करके वहाँ लोकल लोगों से मालूम करके, स्कूल में जहाँ पढ़ता है वहाँ से मालूमात फ़राहम करके, और अगर मुतमईन हो जाते हैं तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। या बहुत ज़्यादा होता है तो जो उसके केयर टेकर होते हैं उनको दिया जाता है कि आप इसकी निगरानी करें, जब हम लोगों को भरोसा हो जाता है तो। लेकिन रहनुमा फाउंडेशन का जो विज़न है वो ये है कि एक तो हम यानी प्रॉपर वे में उसका ट्रांजैक्शन करें, साथ साथ अल्टीमेटली हम लोगों को यहाँ से लौट करके अपने मुल्क जाना है, और वहाँ जा करके वहीं पे यानी असल काम तो वहीं करना है। तो वहाँ पे एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो जिसके तहत ये काम किया जाए। थोड़ा बहुत काम वहाँ पे हुआ है, जैसे अभी दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, ख़ास तौर से बिहार के ठेला चलाने वाले, सब्ज़ी बेचने वाले, या वो औरतें जो काम करती हैं, उनके बच्चों को आइडेंटिफाई करके 2 साल पहले रमज़ान में बुलाया गया था, और बुला करके उनका फॉर्म यानी फ़िलअप कराया गया था, जो गवर्नमेंट का जो स्कॉलरशिप स्कीम है जो गवर्नमेंट देती है, तो उसकी फॉर्मेलिटी पूरी कराई गई थी, और इस तरह से तकरीबन 27 बच्चों को स्कॉलरशिप मिला रहनुमा फाउंडेशन के ये प्रोग्राम के तहत प्लान करके। और अब आइंदा इसको आगे बढ़ाना है, काम करना है आप लोगों के ताउन से। अभी कोई बहुत बड़ी इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली है, अभी कोई काम बहुत आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसकी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करेंगे इसको। तो अभी इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब तहसीन अहमद साहब। अब मौजूद हाज़रीन, बिहार अंजुम के इस तफसीली तारुफ़ के बाद मैं इस अंजुमन के अहदेदारान बल्कि ज़िम्मेदारान का तारुफ़ भी ज़रूरी समझता हूँ, और ये भी कि उनकी बेश खिदमत का इतराफ़ भी किया जाए। लिहाजा मैं दावत देता हूँ बिहार अंजुमन दमाम खोबर चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब सलाउद्दीन ख़ान साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और बिहार अंजुमन दमाम खोबर चैप्टर्स के ऑफिस बियरर्स का तारुफ़ कराएँ। जनाब सलाउद्दीन ख़ान साहब।
नहमदहू व नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अपने तमाम एडवाइजरी कमेटी मेंबर्स को आवाज़ दूंगा, बराए करम सारे लोग स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। जनाब सैयद रसीक अहमद साहब कन्वेनर, जो हमारे अमीर कारवां हैं और जो अपनी खिदमात से दमाम खोबर चैप्टर में बहुत सारा काम किया है। वो ना अपनी बीमारी को देखते हैं, ना अपनी सेहत की परवाह करते हैं, बस दिन रात खिदमत खल्क में लगे हुए हैं। जनाब हसीन रज़ा खान साहब को कन्वेनर, बहुत मेहनत करते हैं इस अंजुमन के लिए। सैयद तहसीन अहमद साहब प्रेसिडेंट रहनुमा फाउंडेशन न्यू दिल्ली, जो बिहार अंजुमन के एसोसिएशन से जो हमारा वहाँ एनजीओ रजिस्टर्ड हुआ है उसके प्रेसिडेंट हैं और हमारे यहाँ के एसीएम भी हैं। मिस्टर गुलाम रब्बानी आज के इवेंट मैनेजर, जिन्होंने बड़ी जद्दोजहद करके यहाँ तक इस प्रोग्राम को लाया है, दिन रात मेहनत की है इन्होंने। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी जनाब जावेद अहमद साहब अलकरियान ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और माशाअल्लाह हमारे अंजुमन के रूह रवां भी हैं। शकील हाशमी कोड ऑफ कंडक्ट कमेटी के मेंबर हैं। मिस्टर अंदलीब रहमान, मिस्टर ज़ियाउद्दीन खान, अच्छा, मिस्टर कमर नदवी, मिस्टर इक़्तिदार अहमद साहब, एक हमारे एसीएम हुमायूं रशीद साहब हैं, बीमार हैं। आप लोग अपनी दुआओं में उनको याद रखें और अल्लाह बारिक ताला से दुआ करें कि उनसे जल्द से जल्द सेहत याब हो जाए। वो आज यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। सैयद फ़ैयाज़ मोहसिन साहब, मोहम्मद फ़िरोज़ुद्दीन साहब, मिस्टर फैज़ुद्दीन साहब, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत भाग दौड़ किया है। हमारे फ़ैयाज़ मोहसिन साहब इधर और जनाब फैज़ुद्दीन साहब इधर से तशरीफ़ ला रहे हैं। रज़ाउल इस्लाम हमारे यंग ब्रिगेडियर के भी एक मेंबर हैं, जो बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त करते हैं अंजुमन के लिए। जनाब फ़खरुल हसन साहब, जनाब सरफराजुल हक साहब, मोहम्मद जाहिद साहब, इकबाल सैयद साहब, अंदलीब साहब और ज़ियाउद्दीन साहब, ये दो तशरीफ़ ले आए। एजाज़ अफजल और वसीम आज़म, ये दो एसीएम हमारे गेट पर मौजूद हैं, इंशाअल्लाह वो भी हमसे जुड़ेंगे। जो एसीएम स्टेज पर नहीं पहुँचे हैं बराए करम आ जाएं, कहीं नीचे भी हों तो आ जाएं प्लीज़। रमीज़ खान एसीएम, फ़खरुल हसन इक़्तिदार साहब, वसीम आज़म, रमीज़ खान, गुलरेज़ भाई, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद इमदादुल्लाह, काजिम नज़र, ये लोग शायद छुट्टी पे हैं। और वक़ार अहमद साहब मौजूद हैं तो आ जाएं। वक़ार अहमद साहब, हमारे तमाम एसीएम मौजूद हैं। अब इसके बाद मैं अपने चीफ़ गेस्ट मेहमान ख़ुसूसी, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, सऊदी अरब में एक माहिर तालीम, इंसान दोस्त व इंसानी खिदमतगार के हामिल और एक कामयाब ताजिर, मैं दावत देता हूँ डॉक्टर नदीम अख्तर तरीन साहब को, जो रियाद से आए हैं। पुरजोर तालियों के साथ उनका स्टेज पर इस्तकबाल करें। मैं सैयद रसीक साहब को कहता हूँ कि उन्हें मोमेंटे से नवाजें। इसके बाद मैं गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर अमजद खान साहब, डायरेक्टर ऑफ डून इंटरनेशनल स्कूल अलखोबर को दावत देना चाहता हूं और शकील हाशमी से गुजारिश करूंगा कि वो इन्हें मेमेंटो पेश करें।
मीर कारवां, रूह रवां, जनाब सैयद रशीक अहमद साहब, जिनके खिदमात का हम जितना भी गुणगान करें, जितना भी कहें, जितनी भी बातें कहें, बस सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। हमारे अंजुमन के लिए बहुत कुछ करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। उनको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो हमारे जावेद अहमद साहब और वसीम आज़म साहब उन्हें पेश करेंगे। जावेद अहमद और वसीम आज़म दोनों मिलके उन्हें ये पेश करें। और माशाअल्लाह वसीम आज़म साहब हमारे रशीक साहब के दामाद भी हैं। अब ज़ियाउद्दीन साहब हमारे ACM, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि वो दून इंटरनेशनल स्कूल अलखोबर के डायरेक्टर मिस्टर अमजद खान साहब को एज ए स्पॉन्सर, हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर है, उसके नाते उन्हें एक मोमेंटो पेश किया जाए। ये मोमेंटो एज ए स्पॉन्सर हम पेश कर रहे हैं। ये स्पॉन्सर जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को कामयाब बनाने में पूरी मदद की, हमारा साथ दिया, हमें ताउन दिया। हसीन रज़ा खान साहब को मैं दावत देता हूँ कि रेड टैग के शमशाद गौहर साहब को, शमशाद गौहर साहब रेड टैग से स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। अंजलि भाई आप आ जाएं। मैं अंजलि रहमान से गुजारिश करूंगा कि इस्पार जुबैल जनाब सिबली सिद्दीकी साहब को वो मोमेंटो पेश करेंगे। अजहर अंजार भाई रिप्रेजेंट करें, उनको दे दिया। मिस्टर सैयद आसिफ पासा, अरब नेशनल बैंक टेली मनी। मिस्टर रजाउल इस्लाम से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और उनको मोमेंटो पेश करें। मैं जनाब गफूर साहब मालाबार गोल्ड, मिस्टर गुलाम रब्बानी आप मालाबार गोल्ड को मोमेंटो पेश करेंगे। हिमालय हर्बल की तरफ से मिस्टर रेहान खान साहब, हिमालय हर्बल की तरफ से मिस्टर रेहान खान साहब, ठीक है। हसीन रज़ा साहब आप इसे ले लें। कमर नदवी साहब दें। चले, कोई आया नहीं है, ठीक है। आप हसीन रज़ा साहब आप ले लें। वैल्यू राइट दिल्ली को सैयद तहसीन अहमद साहब को हमारे फ़खरुल हसन साहब मोमेंटो पेश करेंगे। मिस्टर आमिर सोहेल मैरिको, फैज़ी भाई आ जाइए। मोहम्मद फैजुद्दीन आप पेश करें। एजाज अफजल, जहीर हाशमी, अयान हाशमी, सेलेक्स कंपनी, एजाज अफजल। मिस्टर जोहैब सिद्दीकी फ्रॉम स्कूली। अंदिलीप साहब को इक़्तिदार साहब मोमेंटो पेश करें, बरकात इंटरनेशनल की तरफ से। समसा एक्सप्रेस मोहम्मद शफीक साहब, मिस्टर फिरोजुद्दीन साहब, मोहिद्दीन साहब, रफ़ा मेडिकल मोहिद्दीन साहब, सैयद फैयाज मोहसिन साहब, अलायंस मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग, रफ़ा मेडिकल सेंटर के लिए मैं अपने पोएट को दावत देने जा रहा हूं और जनाब गौहर कानपुरी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जौहर कानपुरी सॉरी। और जनाब अमजद खान साहब दून इंटरनेशनल स्कूल
मोमेंटो पेश करेंगे इनको। मिस्टर एम तुराज सैयद रशीक अहमद, जनाब असलम